Good afternoon. Next topic of chapter number 3 is occurrence of metals. How metals is occurred or how metal is formed. We already know that some of the metals are found in the free state in the earth crust. In fact, all the minerals are found from the earth's crust. Some can be obtained in free state, some are obtained as oxides, sulfides or carbonates. So first of all, what is minerals? The elements or compounds which occur naturally in the earth crust are called minerals. Elements or compound which occur naturally in the earth crust, जो earth crust में naturally हमें मिलते हैं, are minerals. Then next come ores, the minerals from which metals can be extracted. मिनरल में से मेटल को अलग करना है, यानी उसको बोलेंगे ओर. मेटल अकेला प्योर फॉर्म में नहीं मिलता हमें, सम इम्प्योरिटीज आर आल्सो देयर. सो वो जो मिनरल मिला उसके अंदर से इम्प्योरिटीज को अलग करके मेटल को अलग करते हैं, तो उसे बोलेंगे ओर्स. प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर. ओर के अंदर से प्योर मेटल, और के साथ क्या होगा, साथ में इम्प्योरिटीज होगी, तो इम्प्योरिटीज को अलग करके प्योर मेटल को हम निकालेंगे. वो प्रोसेस को बोलेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. नाउ मेटल्स आर ऑफ, वी हैव सीन द रिएक्टिविटी सीरीज बिफोर. तो रिएक्टिविटी सीरीज यानी जो सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं वो हमें डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, बहुत ही कम मेटल्स है, यानी कि जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स है रिएक्टिविटी सीरीज में बॉटम पे जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स है जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम और कॉपर, दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट, वो हमें डायरेक्टली मिल जाएंगे. देन इन द रिएक्टिविटी सीरीज मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स आर देयर, तो दे आर फाउंड एज ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स. मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स कौन से है, तो जिंक, आयरन, लीड, वो सारे मॉडरेट रिएक्टिव है. दे आर इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज. द लास्ट मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ये सारे कहाँ होते हैं, एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज. दे आर फाउंड एज ऑक्साइड्स. अर्थ क्रस्ट में वो कौन से फॉर्म में होंगे, ऑक्साइड्स के फॉर्म में होंगे. एग्जाम्पल है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. we will learn all these how to extract metal, pure metal from these reactive metals. और इसके अंदर से हम प्योर मेटल कैसे निकालेंगे, तो ये सारी हम प्रोसेस पढ़ेंगे. I have drawn here flow chart of extraction of pure metals from its ore. We seen before that there are metals of high reactivity, metals of medium reactivity and metals of low reactivity. फर्स्ट ऑफ ऑल ओर इज देयर. ओर के अंदर से कंसंट्रेशन ऑफ ओर करना पड़ता है. फर्स्ट कंसंट्रेशन मींस रिमूविंग, गेनिंग मींस द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर, तो उसे बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ. उसके बाद आएगा अलग अलग प्रोसेस होगी डिपेंडिंग ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स. अगर हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होंगे तो वी विल डू द प्रोसेस done will be electrolysis of molten ore, and then from there pure metal will be obtained. The metals are of medium reactivity, so there will be two ores. We have seen that before, carbonate ore and sulfide. If carbonate ore is there, then calcination process will be done. In calcination, heating of ore is done in the absence of oxygen, in the absence of air. But if sulfide ore is there, then roasting process will be done, and in roasting ores are heated in the presence of excess of air. Calcination में absence of air होता है और roasting में excess of air होती है. ये दोनों प्रोसेस खत्म होने के बाद oxides of metal will be obtained. From that reduction method will be done. Reduction means oxide को reduce करके metal के form में लाना है, और उसके बाद purification of metal होता है. In the last, if the metals are of low reactivity, then sulfide ores will be there. If metals are of low reactivity, then it will be of sulfide ores. Roasting process, roasting में होगा, heating होगा और उसका in the presence of excess of air. then metal is reduced
and again refining of metal is done. Now we will learn extraction of metals of low reactivity. ऐसे metals जो कि less reactive है उनका extraction कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे. Now as the title suggests कि ये less reactive metals है तो they can be उनका oxides form जो होगा सिर्फ हीटिंग करने से ही हमें डायरेक्टली वो मिल जाएंगे बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव. आई हैव टेकन एग्जांपल ऑफ मर्क्यूरी ओर दैट इज सिनाबार. ये मर्क्यूरी ओर है व्हेन इट इज हीटेड विथ एयर तो मर्क्यूरी ऑक्साइड इज फॉर्म विथ सल्फर डाइऑक्साइड. अब हमें सिर्फ सिंपल हीटिंग करने से मर्क्यूरी ऑक्साइड मिल गया तो अगेन मर्क्यूरी ऑक्साइड को सिंपल हीटिंग करेंगे तो वी विल ऑब्टेन प्योर मेटल ऑफ मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन गैस विल बी separated. This is second example of low reactivity metal, that is copper. So first I have taken ore of copper, that is copper glans, and when it is heated with air so partially oxidized metal, copper oxidized metal is obtained with sulfur dioxide. अब वापस से हम क्या करेंगे कि कॉपर डाइऑक्साइड जो मिला है हमें वो हम उसको वापस हम कॉपर सल्फाइड यानी कि कॉपर ग्लांस के साथ वापस से ऑक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे और हीट करेंगे तो क्या वी विल ऑब्टेन कॉपर, प्योर कॉपर मेटल. अगेन कॉपर ग्लांस इज टेकन एंड हीटेड तो वी गेट कॉपर डाइऑक्साइड. Again copper oxide is obtained and copper oxide again is heated with copper sulfate, that is copper glans, and when heated then we obtain the copper metal. ये यहीं पे खत्म होता है ये टॉपिक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी.